ایک کے سامنے 9 ساتھی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آپ کو کہیں اس طرح کی پوزیشن ہو کہ آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دے اور آپ اس مسافر کی حالت میں اس پردیس میں تنہا ہو تو آپ کا کلیجہ ہل جائے گا کہ نہیں؟ ارے بولیے، ہلے گا کہ نہیں؟ اس ٹائم سامنے والا جو بھی بولے گا آپ وہی کرو گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک کے سامنے 9 کو شہید کر دیا گیا، ایک کو بچا لیا گیا اور اس ایک سے کہا گیا تیرے لیے آفر ہے، تیرے لیے موقع ہے۔ کہا کیا موقع ہے؟ کہا کہ میں تجھے اپنی بیٹی سے تیری نکاح کرا دوں گا، میں اپنی بادشاہت میں تجھے بٹھا دوں گا، گدی میں بٹھا دوں گا، صرف ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا نبی کا کلمہ چھوڑ دے، میرا دین پکڑ لے۔ اس صحابی نے کہا کس بادشاہت کی بات کر رہے ہو؟ تیری بادشاہت کتنی بڑی ہے؟ اگر تو پوری دنیا میرے حوالے کر دینا پھر بھی میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور زور سے بولو۔ جناب منار المنبر شیخ 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے اور ان کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ کیا کہا کہ پوری دنیا بھی میری ہتھیلی پہ رکھ دے پھر بھی میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے قید کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، 3 دن تک نہ دانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، کچھ نہیں، بھوکا رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد اس کے سامنے سور کا گوشت رکھ دیا گیا اور شراب رکھ دیا۔ مسلمان سے کہا گیا کھا لے، صحابی رسول نے کہا میں نہیں کھاتا۔ کہا ارے تیرے نبی نے مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دی ہے، کھا لے۔ صحابی نے کہا، دیوانے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میرے نبی نے مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن میں کہیں تنہا ہوتا، کسی جنگل میں ہوتا، کسی بیابان میں ہوتا تو میں کھا لیتا، لیکن اگر ابھی میں کھا لوں گا تو میری زندگی شاید بچ جائے گی، لیکن تیری کفر کو تسکین مل جائے گی، تیری کفر کو سکون مل جائے گی۔ ارے جلسے کے کمیٹی لوگ کہاں ہیں؟ شفیق دیکھو نا، ہلہ بند کرو ادھر سے، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بالکل دھیان سے سنیے، ایک جملہ بھی گرنے نہ دیجیے گا۔ کیا کہا؟ میں کہیں تنہا ہوتا تو شاید کھا لیتا، لیکن آج کھا لوں گا تو تجھے تسکین مل جائے گی کہ جو مسلمان حالات اختیاری میں جرم نہ کر سکا، حالات اضطراری میں مجبوری میں حرام کھا کے مرا ہے، مجھے مرنا گوارا ہے لیکن نبی کی شریعت سے منہ موڑنا گوارا نہیں۔ کھایا، بادشاہ تدبیر سوچنے لگا اس کے ایمان کو کیسے چھینا جائے، اس کے دین کو کیسے بدلا جائے۔ میٹنگ بلائی گئی، میٹنگ میں یہ فائنل فیصلہ ہوا کہ ایران کی سب سے حسین عورت، سب سے خوبصورت عورت اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی خوبصورتی سے پورا ایران فدا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگاتے تھے، قطاریں لگا لیتے تھے، اپنا گریبان پھاڑ لیتے تھے، دھکا مکا ہو جاتا تھا صرف اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس عورت کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کمرے میں ایک دیوانہ ہے، محمد کا دیوانہ ہے، اس کا ایمان چھیننا ہے، تجھے کمرے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس عورت نے کہا یہ تو میری چٹکی کا کام ہے۔ کیا کہا عورت نے؟ یہ تو میرے چٹکی کا کام ہے۔ عورت کمرے میں گئی، نبی کا دیوانہ نماز میں لگا ہے، کمرے میں بیٹھی ہے، سر دھج کر بیٹھی ہے، طرح طرح کی ادائیں دکھا رہی ہے، لیکن نبی کا دیوانہ ہے کہ نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، ایک نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 6 دن گزر گیا، 6ٹھے دن اس عورت نے آگے بڑھ کے اس آدمی کا، صحابی کا، اس دیوانے کا ہاتھ تھام لیا۔ کہا تو کس جنگل سے آیا ہے؟ تو آدمی ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ ارے مجھے دیکھنے کے لیے پورا ایران بیتاب رہتا ہے، میری ایک جھلک پانے کے لیے جوان ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، لائنیں لگ جاتی ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں۔ تو کس دیش سے آیا ہے، کس جنگل سے آیا ہے؟ میں 6 دن سے تیرے سامنے بیٹھا ہوں مگر تو ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابی نے کہا میں کس سے محبت کرتا ہوں بتاؤ؟ کہاں بتا دیں؟ آپ لوگ سننا چاہتے ہو کس سے محبت کرتا ہوں؟ سب لوگ سنیں گے؟ نہیں چھوڑ دیجئے، پھر کبھی سنیں گے؟ تو 10 آدمی 200 روپیہ کر کے دیجیے۔ دیکھتا ہوں کہ آپ حقیقت میں سنیں گے یا صرف اوپر اوپر کہہ رہے ہیں۔ 10 آدمی 200 روپیہ کر کے، 10 آدمی سے 200 کا سوال، ایک آ گیا، ایک آ گیا۔ اتنے بڑے مجمع میں جتنے جوان بیٹھے ہیں یہ 500,000 روپیہ روز بازار میں اڑا دیتے ہیں، 200 روپیہ مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ 10 آدمی صرف 200 روپیہ کر کے،
सुभान अल्लाह। ये 2 कलम हो गया, और ये जो है 3 कलम हो गया, 3 कलम हो गया, ये 4 कलम हो गया। सुभान अल्लाह, 4 कलम हो गया। वाक़या सुनना है तो 10 आदमी पूरा। अरे सुभान अल्लाह। एक जवान ने 500 रुपया दे दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उसके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए। तो ये 500 है, कोटा है, इसमें से रखिए। सुभान अल्लाह। ये 3 था, 4 था, 5 हो गया, और सिर्फ 5 कलम। सिर्फ 5 आदमी 200 रुपया कर दिया। 200 रुपया कोई ज़्यादा रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। 200 रुपया आप बाज़ार जाते हैं तो यूँ ही बैठ के गपशप में, चाय शाय में 500 1000 तक गुल हो जाता है। यहाँ 200 रुपया कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 कलम हो गया, 6 कलम हो गया, और 4 आदमी और 4 जवान खड़े हो जाएं, 200 रुपया। सुभान अल्लाह। तो 7 हो गया, और 3 आदमी। पूरा नाम सुभान अल्लाह। जनाब मंजूर शेख 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। 200 रुपया। हाँ जनाब इमदादुल शेख समिति साहब 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह ताला। सिराजुल डीलर साहब 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह ताला इस दान को भी कबूल फरमाए। जनाब जल्लू घरामू साहब यहाँ का 200 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। सहली घरामू। तो ये 200 रुपया मेरे कहने पे दिया ना, यहाँ दिया मेरे कहने पे। तो यहाँ 7 था, लेकिन सामने बैठे 7 था ना, तो 8 हुआ। 8 हो गया। अब 2 आदमी सिर्फ 2 जवान। सुभान अल्लाह। ये 9 हो गया, और ये आदमी, और सिर्फ एक जवान कोई 200 रुपया लेके आ जाए। उसके बाद मैं वाक़या आगे सुनाऊँ। फिर हदीस भी सुनाना है, मैंने आपसे वादा किया है। वो पुरानी हदीस है, लेकिन जब जब सुनिएगा तो लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा और नया ही लगेगा। 9 हो गया है, सिर्फ एक आदमी आ जाइए। सिर्फ एक आदमी 200 रुपया करके। सामने घर में तो 200 रुपये दिया, इसमें 300 दिया था। वो 300 दिया था, तो उसको वहाँ रखिए। हाँ, तब फिर 2 कलम रखिए। 2 कलम। 2 जवान के पास 200 रुपया नहीं है, यकीनन है, लेकिन देने के लिए दिल चाहिए, और इंशाअल्लाह वो देंगे। 8 कलम हुआ है, 2 कलम बाकी है। 200 रुपया करके जब तक नहीं 10 कलम पूरा नहीं होगा, मैं वाक़या नहीं सुनाऊंगा। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस गांव का वहीमुद्दीन मेंबर साहब ने 2000 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मेंबर साहब 2000 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए और उनके नेक इरादे को पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। 8 कलम हुआ है। 2 जवान जल्दी खड़े हो जाओ। जब तक नहीं दोगे ना, मैं सुनाऊंगा भी नहीं। मैं बड़ा जिद्दी हूँ, मैं नहीं सुनाता। आप 10 पूरा करो, फिर वाक़या सुनो। नहीं पूरा करोगे तो यूं ही बैठे रहो। मैं भी बैठा रहता हूँ, कोई मुजाहिदा नहीं। आप जो दे रहे हैं ये सब खुदा का दिया हुआ है, और मुस्तफ़ा के सदक़े में हम सब खा रहे हैं, और खुदा के घर में हम देने से कोताही कर रहे हैं। ज़रा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। 2 आदमी 2 जवान खड़े हो जाए। सिर्फ 200 रुपया का सवाल है। 200 रुपया नहीं है किसी जवान के पास। सिर्फ 2 लड़का खड़ा हो जाए कि रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 10 हो गया, 10 हो गया। अब मुझे वाक़या सुनाना पड़ेगा, लेकिन क्या 11 हो गया। तो 11 हो गया। आप लोग जानते हैं कि मैं स्टेशन ही पे उतरता हूँ।
मैदान में नहीं उतरूंगा। जब बढ़ा दिया है किसी लड़के ने, गाड़ी को धक्का दे दिया, गाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई थी, तो आप मुझे मैदान में ना उतारिए, मेहरबानी करके अगला स्टेशन पहुंचाइए। अगला स्टेशन 20 में है। आज का जवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, 20 आदमी फटाफट खड़ा होकर दे सकता है, कोई एक आदमी भी दे सकता है, देखिए स्टेशन पहुंचा सकता है। भाई मेरी गुजारिश यही है कि मुझे मैदान में ना उतारे, स्टेशन में उतारे। इसलिए 9 आदमी और जल्दी जल्दी आइएगा। जब तक नहीं आइएगा वो वाकया वहीं का वहीं रह गया, पोस्टपोन रह गया, उसको नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, जनाब मरहूम इसहाक मुन्ना की लड़की नाबिरा खातून 700 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जल्दी से नौजवान खड़े हो जाओ, जल्दी से 9 आदमी कहीं से भी 200 रुपया करके भेज दो या खुद आकर दे दो। मैं वाकया सुनाऊंगा, उससे पहले ये शेर सुन लो कि रोज़ी खुदा ने दी है, खिला दे है मुस्तफा, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते और मुझे स्टेशन नहीं पहुंचाएंगे तो मैं पागल थोड़ी हूँ। ना सुभान अल्लाह। 9 आदमी से 200 का और सवाल है, 10 में ख़त्म हो जाता तो बात आगे बढ़ जाती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और 8 कलम रह गया और 8 जवान अपनी अपनी जगह से जल्दी से खड़े हो जाओ। सोचने में, नेकी में सोचना नहीं चाहिए। अलीमुद्दीन की माँ ने 786 से मस्जिद अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कितना? 7। सही से ध्यान रखना, तुमसे मैं पूछूंगा। और 7 आदमी चाहिए, 7 कलम, 7 लड़के खड़े हो जाए, 7 जवान। कहीं से भी पीछे जो खड़े हैं वो लोग भी, पीछे जो बैठे हैं वो लोग भी। 200 रुपया आप दान दे चुके हैं तो दे चुके हैं, लेकिन 200 रुपया का सवाल है, 200 रुपया दे दीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं दे देंगे आप, कहीं बेकार नहीं जाएगा। जब इसका फल, इसका अजर आप क़यामत में कब्र में देखोगे तो उस दिन पछताओगे कि मैंने 200-500 ही क्यों दिया था, अपनी सारी जायदाद क्यों नहीं दी थी। इसलिए कि ये वहाँ की पूंजी है, यहाँ जो आप दे रहे हैं वहाँ की तैयारी है। आप वहाँ की तैयारी करने इस दुनिया में आई ही है, खुदा की दी हुई नेमत खाते हैं। 200 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, 200 रुपया का सवाल है। अब तक किसी दूसरे इलाके में और हसास इलाके में होता ना तो ये 70-80 तक पहुँच जाता, लेकिन अब तक जो है ये 20 नहीं पहुँचता है। तो सुभान अल्लाह। तो ये कितना? और 6 कलम और 6 आदमी चाहिए, हिसाब रखना। तो 6 आदमी 200 रुपया करके 6 आदमी। इतना सोच के आइएगा तो टाइम खराब होगा। जितना आप देरी कीजिएगा मैं उतनी देर तक वाक़े को रोक के रखूँगा। 200 रुपया। हाँ, मनारुल जजी साहब पियारपुर से आए हैं, 200 रुपया, माशाअल्लाह। जल्लो घरामुख की बीवी अपने वालिद वालिदा के लिए 200 रुपया। अब कितना हो गया? और 4 चाहिए, 4। जल्दी कीजिए, बहुत करीब आ गया है, स्टेशन बिल्कुल सामने है, करीब आ गया है। जितने लोग बैठे हैं इनमें इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि सबकी ख्वाहिश यही होगी कि सरकार की ज़ियारत किसी दिन ख्वाब में हो जाए। सबकी दिल की तमन्ना होगी कि किसी दिन रात को सो जाऊँ और ख्वाब आए तो सरकार की ज़ियारत हो जाए। लेकिन हजरात, मैं एक स्टेज से
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जनाब एजाबुल हक 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। देखिए बातें सुनिए, नाते सुनिए, लेकिन इधर ध्यान रखिए, 4 आदमी बाकी है। जल्दी जल्दी अपने दिल को मनाइए, अपने जज्बे को मनाइए, अपने ऊपर से शैतान को हटाइए और 200 रुपया लेके जल्दी से आइए। मैं एक शेर, एक नुस्खा देता हूँ आज की महफिल से कि जो सरकार की ज़ियारत करना चाहते हैं ख्वाब में, एक तरीका है, एक नुस्खा है, उस तरीके पर सच्चे दिल से अमल करोगे तो इंशाअल्लाह सरकार किसी दिन ख्वाब में जरूर तशरीफ लाएंगे और आपको अपना जलवा दिखा के जाएंगे। सरकार की ज़ियारत करने के लिए मैं एक नुस्खा देता हूँ, समाज कर लो। सुभान अल्लाह। लेकिन 200 रुपया, अभी 4 आदमी बाकी है, उधर भी ध्यान रखिएगा कि रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, रोज़ी खुदा। सुभान अल्लाह। कितना और 3 चाहिए ना? मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, इसलिए सामने जो बैठे हैं आप ध्यान रखिएगा। और 3 आदमी चाहिए, सिर्फ 3 आदमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 200 रुपया 10 के नीचे। जनाब मोहतरम जल्लू शेख 10 किलो चावल और 200 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। तो ये हो गया। और 2 चाहिए ना? और 2 चाहिए। 2 आदमी सिर्फ जल्दी से दीजिए, उसके बाद उस वाक़े को सुनिए। एक शेर और जो मैं नुस्खा सुनाने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिए कि आका की ज़ियारत कैसे हो सकती है। आका की चेहरे की ज़ियारत करने वाले ख्वाहिशमंद लोग इस नुस्खे पर अमल करेंगे, इस अमल पर, इस काम पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ज़ियारत हो जाएगी। समाज के लिए जरा कहते सुभान अल्लाह। कि दुनिया है खुदा की कि पढ़ कर दर्द रात में सो जा बावजो, पढ़ कर दर्द रात में सो जा जल्दी कीजिए ना। 2 आदमी 200 रुपया जल्दी से देख दिए। मैं फौरन स्टेशन में उतर जाऊंगा ताकि गाड़ी खुलने से पहले मैं उतर जाऊंगा। सिर्फ 2 नहीं है, 2 जवान नहीं है। सुभान अल्लाह। एक आ गया और सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। चुपके से कोई एक आदमी आइए और 200 रुपया दीजिए और उस वाक़े को ख़त्म करूं और फिर हदीस सुनाऊं। हज़रात अभी कितनी बातें करनी थी, कितनी हदीसें सुनानी है आपको, और आप यहाँ आए हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ लेने के लिए। यकीनन आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। सिर्फ एक जवान, एक आदमी कहीं से कोई खड़ा होकर 200 रुपया मेरे हाथ में थमा दे, 20 का स्टेशन आ जाएगा, मैं फ़ौरन कूद के उतर जाऊँगा, आपको वाक़या सुनाऊँगा, हदीस सुनाऊँगा। जब तक एक आदमी पूरा नहीं होगा मैं नहीं सुनाऊंगा, इसलिए मैं ज़बान का बड़ा पक्का हूँ, मैं नहीं सुनाता। मैं बड़े बड़े जलसों में भी, बड़े बड़े जगहों में भी इस हरबे को अपनाता हूँ तो स्टेशन पहुँचकर ही छोड़ता हूँ, मैदान में मैं नहीं उतरता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये जनाब नाम अच्छा चलो 200 रुपया दे दिया। अब मैं 20 का स्टेशन पहुँच गया, मैं पैसे को यहाँ पर रख दिया। अब आपको वाक़या सुना दूंगा और उस वाक़े के बाद मैं हदीस सुनाऊंगा। मैं वाक़े में कहा था कि सहाबी से, नबी के दीवाने से उस औरत ने, ईरान की खूबसूरत औरत ने पूछा तू किस जंगल से आया है? तो देरी हो रही है, गाड़ी छोड़ गई, मैं उतर गया देर मैं फिर दूसरा करूँगा, देरी हो जाती है। अच्छा सुन लीजिए, पहले वाक़या को ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद फिर आगे मैं स्टॉप लेता हूँ। किस जंगल से आया है? मेरे हुस्न को देखने के लिए पूरा ईरान बेताब रहता है। 6 दिन से तेरे सामने बैठा हूँ, तो नजर उठा के देखता भी नहीं है, तू किसका दीवाना है? तो नबी का दीवाना बोला
کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں ہے کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں ہے کوئی۔ اور دور سے اس عورت نے کہا تو اپنے نبی کا اتنا دیوانہ ہے، اتنا دیوانہ ہے تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا، چل مجھے اپنا ہاتھ بڑھا، مجھے اسی نبی کا کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب باہر نکلا لوگوں نے پوچھا تجھے تو شکار کرنے بھیجا تھا تو خود شکار ہو کے آ گئی، تجھے تو بدلنے بھیجا تھا تو خود بدل کے آ گئی، تجھے تو پھنسانے بھیجا تھا تو خود پھانس کے آ گئی، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب نبی کے غلام کی نگاہ کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے اسلاف نے دین پھیلایا ہے، تکلیف برداشت کی ہے۔ اب میں وہ حدیث جس کے لیے میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا وہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعے کی فرمائش ہے، سنا دوں؟ لیکن اس کو میں لگ بھگ بہت سنا چکا ہوں، 4 5 10 دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی ایک جوان نے کہہ دیا کہ اس کو سنائیے گا۔ سنا دوں؟ سنیں گے؟ بور تو نہیں ہوں گے؟ ارے سب بولیے نا، سنیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، کہہ دے یا رسول اللہ۔ اب سنیے، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ کمزور ہو گئے، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ مسلمان اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنے ایمان اپنے ضمیر کو بیچ دے، لیکن آج کا مسلمان اپنی ضمیر کو بیچ دیتا ہے، ایک پیسے میں ایک چائے میں اپنی زبان بدل دیتا ہے۔ بدلتا ہے نا؟ ارے دیکھا ہے نا آپ نے؟ بس سنا تو ہے، ایک چائے پہ زبان بدل دیا، 150 500 روپیہ میں غلط گواہی دے دی۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، یہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے، مسلمان کا عمل نہیں ہے۔ مسلمان تو سچا پکا ٹناٹن ہوتا، جو بول دیا تو بول دیا، جو کر لیا تو کر لیا۔ سبحان اللہ۔ کالو شیخ، جناب کالو شیخ اپنے دادا کے نام پر، زاہد سے دادا کے نام پہ دیا۔ اچھا، جناب زاہد شیخ اپنے دادا مرحوم کے نام پر 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے۔ محمد ناقر صاحب اس کا بہن کے لیے جناب ناقر شیخ اپنی بہن مرحومہ کے لیے 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اس کا نام کو بھول گیا میں، باری عبد الباری، انہوں نے 5 بہن کے نام سے 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ راہد شیخ نانا کے لیے، صابر علی کے لیے 500 راہد شیخ اپنے نانا کے لیے، نانا کے نام پر 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جناب شفیق ال کی امی 200 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جلو گھراموں کی لڑکی بیٹی نے 200 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دھیان دیجئے، ہم اور آپ ٹناٹن نہیں ہے، پکے نہیں ہے، سچا پکا سنی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے دیکھیں گے؟ جی سب بولیے نا، دیکھیں گے نا؟ دیکھیں گے۔ بہت اہم واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، اور اس طرح سے بولیے گا تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر بولنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تھوڑا جوش دکھائیے، اور میں سچا پکا ٹناٹن سنی دکھا رہا ہوں کس طرح ہوتا ہے۔ سچا پکا ٹناٹن سنی، صدیق اکبر کا دیوانہ، لیکن بیچارہ قسمت سے فقیر، غریب، بھیک مانگ کے گزر بسر کرتا ہے، بھیک مانگ کے اپنی روزی روٹی کرتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، لیکن دنیا میں بہت بھکاری ہیں، ان کے بھیک مانگنے کا طریقہ اور ہے اور ان کے بھیک مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہیے۔ یہ بھکاری جب بھی بھیک مانگتا ہے تو ایک ہی بولی بولتا ہے، صدیق کا صدقہ دے دو۔ کیا بولتا ہے؟ صدیق کا صدقہ دے دو۔ ارے سب بولو نا، کیا بولتا ہے؟ صدیق کا صدقہ دے دو۔ سب بولیے، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، منہ سے نکلے اور قبول ہو جائے اور ہمیں بھی صدیق کا صدقہ مل جائے۔ کیا بولتا ہے؟ صدیق کا صدقہ دے دو۔ ہر دروازے پہ جاتا کہتا ہے صدیق کا صدقہ دے دو، صدیق کا صدقہ دے دو۔ لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی امتحان لے لیا۔ بھیک مانگتے مانگتے اس گاؤں میں پہنچ گیا جس گاؤں میں سب صدیق اکبر کے دشمن تھے۔
यानी राफजी शिया, ये सिद्दीक अकबर के दुश्मन है। उस मोहल्ले में पहुंच गया, सिद्दीक अकबर का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते ये कम बखत। उस मोहल्ले में पहुंच गया और आवाज लगाई, सिद्दीक का सदका दे दो। जैसी आवाज लगाई ना, एक शिया एक राफजी के कान में आवाज गई। घर से बाहर आया, भिखारी को देखा, देखकर कहा, तू तो मोहताज है, तू तो भिखारी है, तुझे पैसों की जरूरत है, तुझे दौलत की जरूरत है। एक काम कर, तू सिद्दीक का नाम लेना छोड़ दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। आज हम और आप होते क्या करते? चलो पैसे चाहिए, करते ना। हमारा और आपका जो हाल है, मैं अपने हालात बता रहा हूँ। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि एक पैसे पे, एक चाय पे अपनी जबान बदलते, जमीर बेच देते हैं। इस भिखारी को देखो, इसका कोई रास्ता नहीं था, कोई वसाइल, कोई जरिया नहीं था, कोई बिजनेसमैन नहीं था, भीख मांग के ही खाता था। पैसे मिल रहे थे, वो ले सकता था। उसने कहा, तुम सिद्दीक का नाम लेना बंद कर दो, सिद्दीक का नाम हटा दो, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। लेकिन भिखारी का जवाब सुनकर सब बोलिएगा, दिल से बोलेगा। जब उसने कहा कि सिद्दीक का नाम हटा दो, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, तो उस भिखारी ने बोला कि भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, लेकिन नाम नहीं बदलूंगा। भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाए, लेकिन मैं सिद्दीक का नाम छोड़ नहीं सकता। अरे इसी नाम के सदके तो मैंने जिंदगी भर खाई है, मैं नाम नहीं छोड़ सकता। उस मनहूस शिया ने भिखारी का गरेबान पकड़ा, खींच के घर के अंदर लाया, उठा के तमाचा मारा, कहा बदल, कहा नहीं बदलता, कहा बदल, कहा नहीं बदलता। फिर उस मनहूस शिया ने अपने जेब से चाकू निकाला और चाकू निकाल के उस भिखारी की जबान ही काट डाली। हजरात, आप अंदाजा करो जबान कितनी नाजुक चीज है, जबान कितनी हसास चीज है। खाना खाते खाते एक कंकर चुभ जाता है तो आदमी तिलबिला उठता है, दांत का कोना लग जाता है दांत का तो आदमी बेचैन हो जाता है। जबान सबसे हसास चीज है, जरा सी आंच लगी कि आदमी तड़पने लगता है। इस मनहूस ने भिखारी की जबान ही काटा और जबान काट कर उस कटे हुए जबान का हिस्से को भिखारी के हाथ में रखा और कहा, ये ले तेरे सिद्दीक का सदका ले जा। आप अंदाजा करो और सोचो कि कितना दर्द से तड़पा होगा भिखारी, कितना परेशान हुआ होगा, किस कदर उसे जलन हुई होगी, किस कदर उसको परेशानी हुई होगी, किस कदर दिल मिला रहा होगा। लेकिन अब किसी से बोले तो कैसे बोले, जबान ही नहीं है। अरे केस करने के लिए, शिकायत करने के लिए जबान चाहिए ना, किसी से शिकायत करेंगे तो जबान की जरूरत होगी ना। जबान ही नहीं, किसी से बोले तो कैसे बोले। लेकिन भिखारी जानता था कि जिसकी बारगाह में मैं शिकायत करना चाहता हूँ वो आका, मदीने वाले आका सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि दिल की जबान भी समझते हैं। इसलिए वो दिल ही दिल में बोलते रहे, या रसूलल्लाह, आपके दोस्त का नाम लिया तो मेरा क्या हाल हो, मेरी जबान ही कट गई। कटे हुए जबान को हाथ में लेकर मुंह से खून जारी है, अपने घर की तरफ चला। घर पहुंचा, घर पहुंचकर जैसे ही घर में कदम रखा जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया, आंख लग गई, सो गया। जब सोआ, जब उसकी आंख लगी, जब उसको नींद आई तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखता क्या है कि उसकी झोपड़ी में आमिना का लाल तशरीफ लाए। और जोर से बोले, इस तरह बोलिएगा तो मैं इतना अच्छा वाकया नहीं सुनाऊंगा। आप लोग जोशो जज्बा नहीं दिखा रहे, वाकये को रख दूंगा, फिर कभी सुना दूंगा। नहीं अब मैं उसको बुलाइए, जीवनी वक्ता को बुलाइए, अब वो जीवनी सुनाएंगे और मैं इस वाक्य को छोड़ के मैं रुखसत होता हूँ, एक नात सुना के छोड़ देता हूँ। क्या इरादा है? सुनाइए सुनाइए। अरे सिर्फ नहीं बोलोगे, चलो 10 आदमी 100 रुपया करके दे दो। अब इधर नहीं, उधर भी नहीं और इधर भी नहीं। 100 रुपया का सवाल है यार, 100 रुपया, 100 रुपया भी नहीं है किसी के जेब में। अजीब मामला है। आज मैं किसी के जेब में पैसा लेके वापस नहीं होने दूंगा। मस्जिद के लिए मैंने मांगा है,
मैं कोई अपने पेट के लिए नहीं, एक आदमी 2 आदमी, लेकिन इस तरह से खड़े हो जाए ढूंढ के ढूंढना तो फिर मजा आता है। सुभान अल्लाह। 2 आदमी हो गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 3-4 आदमी हो गया, मैंने 10 आदमी। सुभान अल्लाह। बेगैर नाम के 500 रुपया, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उसके इरादे को पूरा फरमाए। 2 3 4 उधर, हाँ 1 2 3 4 आदमी हुआ, मैंने 10 आदमी से मांगा है। वाक़िया को सुन के जाइए। 5 आदमी हो गया और सिर्फ 5 आदमी, 50 हो गया और सिर्फ 5 आदमी दे दीजिए। वाक़िया पूरा सुना दूंगा। आगे इतना मज़ेदार जुमले हैं और इतना मज़ेदार वाक़या है कि आप सुनेंगे तो परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे। यकीनन इससे पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन इस वाक़ये को मैं जहाँ जाता हूँ लोग फरमाइश करते हैं कि उसको सुनाइए, मैं सुनाता हूँ। हज़रात वाक़या सुनना है तो 5 हो गया, 5 आदमी 100 रुपया करके दे दीजिए। 100 रुपया की कोई हैसियत नहीं है, 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया करके। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अभी चलना भी नहीं आता, उसकी जेब में 100-200 रुपया होता है। सुभान अल्लाह। 100 रुपया ये ले लीजिए। 6 हो गया और 4 आदमी, और 4 आदमी नहीं है, सिर्फ 4 आदमी। 100-100 रुपया करके 4 आदमी आइए। कहाँ गए, कोई है? ए शफीक, मेरा मोबाइल कमरे में है क्या? 4 आदमी 100-100 रुपया। जनाब समाउल शेख 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की, अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। साबिर शेख के लिए 200 रुपया। सुभान अल्लाह। कालू शेख के लिए 100 रुपया। कालू शेख के लिए 100 रुपया। ये मेरा नहीं है, ये इधर का है जी। 100 रुपया। और जाकिर के लड़का दिया उसके लिए 200। अच्छा, जाकिर के लड़के के लिए 200 रुपया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ 6 টাকা বুঝতে পারলি? ये 8 ये 9। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 10 हो गया। तो स्टेशन आ गया। अब मैं वाक़या आपको सुना के रहूँगा, इसलिए कि मैंने वादा किया है कि 10 आदमी 100 रुपया दीजिए, तो 100 रुपया हो गया। अब मैं आपको वाक़या पूरा सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले, उस वाक़या को सुनाने से पहले मैं 1-2 शेर सुना दूँ आपको। जनाब मेराजुल की माँ 320 रुपया से मस्जिद की खिदमत की, अल्लाह ताला इस नाम को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम? अच्छा, बेगैर नाम के एक अल्लाह के बंदे ने 300 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जरा एक बार कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं अपने नबी को पुकारिए मेरे साथ साथ, मेरे अंदाज में, मेरी बोली में। मैं जो बोलूँगा आप सबको बोलना है। सैरुल शेख गुज़िश्ता साल 1000 रुपया बाकी लिखाए थे, इस जलसे में आके उन्होंने उसको पेड कर दिया, दान नकद कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस जैसे जज्बे हर इंसान को दे कि जिस जलसे में जाके बाकी लिखाए तो उसे देने की भी तौफीक हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे साथ आप सबको पढ़ना है और मेरे अंदाज में पढ़ना है और मुझसे जोर में, आवाज में पढ़ना है। पढ़ेंगे? नाते पाक के 2-3 शेर मैं सुना दो। जनाब सहली धर्म की बेटी 100 रुपया से मस्जिद में खिदमत की है, अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो जिस इरादे से दे रहा है, जो जिस नीयत से दे रहा है, अल्लाह सबके इरादे को जानता है, सबकी नीयत को जानता है। यहाँ बयान सिर्फ रस्मन की जाती है, नाम पुकारा जाता है रस्मन, ताकि लोग, ये एक आदत चल पड़ी है, लोग सुनते हैं मेरा नाम हुआ है, लोगों को हौसला मिलता है। नहीं तो नाम बताने की जरूरत नहीं। हम खुदा के घर में दे रहे हैं तो खुदा तो जानता ही है हम कहाँ दे रहे हैं, किस इरादे से दे रहे हैं, किस नियत से दे रहे हैं। हज़रात जरा एक बार और कहिए सुभान अल्लाह, और मेरे साथ साथ पढ़िए कि ऐ शहंशाह मदीना, 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 ऐ शहंशाह मदीना। पढ़ रहे हैं? मेरे कान में कमजोरी है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इस तरह पढ़िए कि मेरे कान में आवाज़ आए सबकी पीछे तक। अपने नबी को पुकारने में शर्माते हैं तो फिर और कहाँ जाइएगा? कब्र में, हश्र में तो वही सहारा है। उसके अलावा न खानदान काम आएगा, ना बाप काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। वहाँ तो सिर्फ नबी ही काम आएंगे। नबी को पुकारिए, दिल से पुकारिए। सब कहिए ऐ शहंशाह मदीना, ऐ शहंशाह मदीना, ऐ शहंशाह
مدینہ اے شہنشاہ 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 مدینہ۔ جناب تاثر شیخ اپنے والد مرحوم کے نام سے، باپ مرحوم کے نام سے 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کیے۔ اللہ تعالیٰ اس دام کو قبول فرمائے اور ان کے والد کی مغفرت فرمائے۔ کہیے اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ۔ سب زور سے کہیے، ایک بار زور سے آ جائے گا آواز، میں آگے پڑھوں گا، نہیں تو یہی گنگناتا رہوں گا۔ اے شہنشاہ مدینہ 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 اے شہنشاہ مدینہ۔ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، بی آمنہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، بی آمنہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ۔ سرفراز شیخ اپنے بھائی صدام کے نام پر 500 جناب سرفراز شیخ اپنے بھائی صدام مرحوم کے نام سے 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے۔ ایک کلام میں سنانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، آپ لوگ سنیں گے؟ جی سنیں گے۔ تو پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ اچھا آپ بھی سوچیں گے کہ صرف نعت پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث سنانے کی بات کی، حدیث نہیں سنا رہے، تو حدیث سناؤں گا انشاءاللہ، حدیث بھی سناؤں گا اور بہت پیاری حدیث سناؤں گا جس سے ہمارے آقا کا پاور، ہمارے آقا کا اختیار آپ کو معلوم ہوگا۔ حدیث پرانی ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حدیث پرانی ہے، لیکن جب سنتے ہیں، جب بیان کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بیان کر رہا ہوں، نیا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لیجیے۔ آج ہم اور آپ کسی بھی خانقاہ میں میراج کا لڑکا صحابی سے 786 روپیہ، میراج کا لڑکا صحابی سے مسجد کے لیے 786 روپیہ سے خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے اور ان کے نیک ارادے کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ کسی بھی خانقاہ میں، بڑی بڑی خانقاہ میں جاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی ہے موئی مبارک شریف، سرکار کے سر مبارک کی موئی مبارک۔ آپ کہو گے کہ یہ کہاں سے مل گیا؟ تو میرے پاس جو ہے وہ سند کے ساتھ، بالکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ، کس کے پاس سے کہاں آیا، کہاں سے کہاں آیا، اس طرح سے میرے پاس وہ ایک موئی مبارک شریف ہے جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ہماری سب سے بڑی عظمت ہے۔ جانتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال مبارک کٹواتے تھے تو صحابہ چاروں طرف سے جمع ہو جاتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے اپنے سر مبارک سے بال مبارک کٹوائے اور حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے ابو طلحہ انصاری، یہ لے جاؤ اور لوگوں میں بانٹ دو، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پتہ چلا کہ سرکار سے منسوب چیز کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اب ہم وہ حدیث سنانے جا رہے ہیں جس کے متعلق، جس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کو اختیار بھی ہے، پاور بھی ہے،
और मेरे आका को इल्म गैब भी दोनों पता चलेगा। एक ही हदीस से दोनों चीज पता चल जाएगा कि इल्म गैब भी है और इख्तियार भी है। मैं सुना दूं वो हदीस, सुना दूं? नहीं, उससे पहले एक शेर सुन लीजिए इस कलाम का, और फिर आगे जाके दूसरा शेर सुनाऊंगा। हम सुन्नी है, हम क्या हैं? सब नहीं है क्या? जी हाँ, बोलिए ना, हम क्या हैं? सुन्नी है। हमारे अकीदत का मरकज बरेली शरीफ है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए हमारे अकीदत का मरकज बरेली शरीफ है। तो इस जुमले को फिर आपको दोहराना है। आप कहोगे कि किस मौलवी को बुलाया, खुद बोलता है, सबको बुलवाता है। जनाब अय्यूब मिस्त्री साहब 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की, अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। खुद बोलता है, सबको बुलवाता है। आप मगर क्या करूं, मेरी आदत है, मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ मजमे से बुलवाता हूँ, ताकि आपको सुनने का भी सवाब मिले और बोलने का भी सवाब मिले। ये जो हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, हमारे दावे में खोखलापन, हकीकत नहीं है। हम नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले नहीं है। नबी से सच्ची मोहब्बत कैसी कही जाती जानते हैं? नबी ने जो फरमा दिया उसी पे अटल, उसी पे खड़े हो जाए। एक दफा सरकार मस्जिद नबी में तकरीर कर रहे हैं, सहाबा की भीड़ लगी है, मस्जिद के अंदर जगह नहीं है, बाहर भी सब बैठे हैं, जो जहां है वहीं बैठा है। आका ने सिर्फ फरमा दिया, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जा। क्या फरमाया? वहीं बैठ जा। एक सहाबी को रास्ते में जगह मिली, मस्जिद के अंदर जाने में जो रास्ता है उस रास्ते में जगह मिली। जैसी आका का फरमान था, एक बाल भी ना इधर हटा ना उधर हटा, इसी ही बैठ गए, क्योंकि आका का फरमान था जो जहां है वहीं बैठ जा। उसने हिला नहीं, वहीं बैठ गया। अब तकरीर खत्म हो गई, लोग जाने लगे, तो वो रास्ते में बैठा था, वो उठ नहीं रहा, वो बैठा है। लोग जा रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, कहा कि अरे उठ जा, रास्ता छोड़ के नहीं उठा। उमर फारूक आए, कहा उठ जा, नहीं उठे। उस्मान गनी आए, कहा उठ जा, कहा नहीं, वो नहीं उठे। अली मुर्तजा आए, हजरत अली पहुंचे, कहा रे तकरीर खत्म हो गई है, उठ जा। उस शख्स ने जवाब दिया, उस दीवाने ने जवाब दिया, अली मैं तेरे कहने से नहीं बैठा हूँ, मैं नबी के कहने से बैठा हूँ। जब तक आका नहीं उठने को कहेंगे बंदा जान दे देगा लेकिन उठेगा नहीं। ये है मोहब्बत और ये है दीवानी। और हम और आप क्या करते हैं? शायद सेठ की लड़की डूली, 200 रुपया से मस्जिद में खिदमत की, अल्लाह ताला इस दाम को कबूल फरमाए। अगले साल के लिए सुभान अल्लाह, नाम बोलिए। चार आदमी मिलके अगले साल के लिए एक खस्सी, मुनव्वर हुसैन, साहबुल शेख, उस्मान गनी शहीद से, इन 4 लड़कों ने अगले साल इस इमाम हुसैन की महफिल के लिए एक खस्सी दान किया है। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए और साल भर में उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए कि अगले साल वो दिए बाकी ना रहे। हज़रात, तो मैं वो शेर पढ़ दूं, उसके बाद हदीस सुनाऊंगा। सब मेरे साथ कहेंगे, मेरा मरकज बरेली है। क्या है? मेरा मरकज बरेली है। एक बार बोलिए ना सब, क्या है? मेरा मरकज बरेली है। हाँ, तो इसको सुर में बोलिए और एक शेर सुना दूंगा, उसके बाद हदीस, फिर आगे जाके एक शेर और सुनाऊंगा। कहिए, मेरा मरकज बरेली है, 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 मेरा मरकज बरेली है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। और जोर से, जब पीछे वाले सोच रहे हैं कि हम लोग चालाक हैं, हम लोग सामने नहीं है, जो सामने वो लोग पागल हैं, सामने चला गया उसको बोल बोल के जो है गला फाड़ देगा। हम लोग पीछे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग VIP हैं। अरे VIP की VIP जब कब्र में जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि VIP क्या है। वहाँ जाके यही काम आएगा, वहाँ जाके आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह बोलिए एक बार पूरा मजमा। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस
जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। कि अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म देने पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म देने पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा मरकज़ बरेली है। अब आइए ठंडे दिल से शांति के साथ उस हदीस को सुनिए। हजरत मौलाना रूम मसनवी शरीफ में नकल फरमाते हैं, लिखते हैं हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ किसी सफर में जा रहे हैं। साथ में सहाबाए किराम की जमात है। रास्ते में चलते चलते एक जगह पर ऐसी पहुंचा कि सारे सहाबी के साथ जो पानी था वो सब पानी खत्म हो गया। अब कोई पानी नहीं बचा, लेकिन जहाँ ठहरा, जहाँ पानी खत्म हुआ वो बिल्कुल बयावान है, ना कोई नदी है, ना कोई नहर है, ना कोई कुआं, कुछ नहीं है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पानी का नामो निशान नहीं। ऐसी जगह पर सहाबा का पानी खत्म हो गया। तो सहाबा ने सरकार की बारगाह में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारा पानी खत्म हो गया, हमें पानी दीजिए। सहाबा क्या नहीं समझ रहे थे कि यहाँ पानी नहीं है कहीं? वो तो देख रहे थे कि यहाँ ना कोई नदी है, ना कोई नहर है, ना कोई कुआं है। फिर भी वो सरकार से आके कह रहे, या रसूल अल्लाह हमें पानी दीजिए। क्या मतलब? सहाबा का अकीदा क्लियर हो गया। सहाबा जानते थे कि हम आका से चाह रहे हैं, अगर आका चाह ले तो यहीं पर दरिया बन जाए। सहाबा का अकीदा है। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी कुछ नहीं कर सकते, सहाबा का अकीदा ये है कि नबी सब कुछ कर सकते हैं। कहा या रसूल अल्लाह हमें पानी दीजिए, तो आका ने भी ये नहीं फरमाया मैं तुझे कहाँ से पानी दे दूँ, ना नदी है, ना नहर है, ना कुआं है, ना नल है, कहीं से पानी का नामो निशान नहीं, मैं कहाँ से पानी दे दूँ? आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अली देखो ये जो सामने पहाड़ है, पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा है। अरे जोर से कहो। अच्छा पीछे जो नौजवान अभी आके बैठे हैं, क्या मजा ले रहे हैं? नबी की महफिल का अदब क्या करो? एक जर्रा बराबर बेअदबी न जाने क्या से क्या काम बिगाड़ के रखते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे जगह खाली है, थोड़ा खिसक के आगे आ जाइए। खामा खा यहाँ वहाँ घूम रहे, खड़े हैं, रास्ते में घूम रहे। अरे कम से कम दीनी प्रोग्राम को तो खुराफात से बचा लीजिए। इन जलसों को आपने खुराफात का अड्डा बना दिया, मनोरंजन का अड्डा बना दिया। और ये सिस्टम भी जो है गलत हुआ है कि खाना यही हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, इधर डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा जितने लोग हैं आप ही लोग सुनिए, जो सुनेगा दिल से, जो मोहब्बत से सुनेगा उसी को काम आएगा, जो नहीं सुनेगा वो अपना समझे। ध्यान दीजिए, आका ने हजरत अली से क्या कहा? पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा। इस पर्दे के उस पार कौन है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? तो जब बता नहीं सकता तो ये जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह, हमारे बड़े भाई की तरह, ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आका क्या देख रहे हैं कि पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा, उसके हाथ में पानी है और वो बंदा काले रंग का है। कह तो सुभान अल्लाह। आका यहाँ से पहाड़ के उस पार आदमी को भी देख रहे हैं, उसके हाथ में क्या है वो भी देख रहे हैं, और किस रंग का आदमी है वो भी बता रहे हैं कि पहाड़ के उस पार एक बंदा जा रहा है, वो भी काले रंग का जा रहा है, हाथ में पानी लेके जा रहा है। लेकिन बताइए कि ये तीनों चीज जो ऊपर ऊपर की है ना,
آدمی ہے تو دکھ رہا ہے، کالا ہے تو دکھ رہا ہے، ہاتھ میں کیا ہے یہ بھی دکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل کا ارادہ دکھ رہا ہے؟ نہیں۔ بتاؤ نا، دل کا ارادہ دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھتا نا۔ دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا، کسی کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جانتا ہے؟ ارے دھیان دیا، اتنی افراتفری، میرا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ ایک بار ضرور شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح افراتفری میں حدیث سناؤں تو مجھے لگتا ہے کہ حدیث کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ دل سے سنیے گا اور سننے کا جذبہ، سننے کی لالچ رکھیے گا، تب تو سنانے میں مزہ آئے گا۔ پہلے ماحول کو شانت بنائیے، پھر میں دو شعر سناتا ہوں کہ میرا رب خوب مہربان ہے، ہونا کیا ہے میرا کہاں گیا؟ اس کو ہمیشہ یہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ ایک تو آواز کھینچ رہی ہے، مائکولا راجو ڈھیسو سنیے کہ میرا رب خوب مہربان ہے، ہونا کیا ہے میرا رب خوب مہربان ہے، ہونا کیا ہے کہ میرا رب خوب مہربان ہے، ہونا کیا ہے مجھ پہ سرکار کا احسان ہے، ہونا کیا ہے۔ تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ حدیث سننے کا ماحول ہوا؟ سنیے، آقا نے کیا فرمایا علی سے کہ پہاڑ کے اس پار ایک بندہ جا رہا ہے، وہ بھی کالے رنگ کا جا رہا ہے، ہاتھ میں پانی لے کے جا رہا ہے۔ یہ سب اوپر کی چیز تھی، دیکھنے کی چیز تھی، آقا نے بتا دیا، لیکن کسی کے دل کے ارادے کو کوئی نہیں جانتا۔ آقا دل کے ارادے کو بھی جان رہے ہیں اور فرما رہے علی تم اس کو بلا کر لاؤ، لیکن اس کو جب بلاؤ گے تو وہ آئے گا نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دل کے ارادے کو بھی آقا جان رہے ہیں، جب تم اس کو بلاؤ گے تو وہ آئے گا نہیں، انکار کرے گا، لیکن علی تم اس کو پکڑ کر لانا۔ ارے بولیے نا، کیا کہا؟ تم اس کو پکڑ کر لانا۔ حضرت علی پہنچے، پہاڑ کے اس پار گئے، دیکھا صحیح تو ایک بندہ جا رہا ہے، وہ بھی کالے رنگ کا جا رہا ہے، وہ بھی ہاتھ میں پانی لے کے جا رہا ہے۔ تینوں باتیں تو سچ ہو گئی، اب چوتھی بات کی تصدیق کرنی تھی۔ حضرت علی نے اسے آواز دیا، ٹھہر، چل تجھے نبی بلا۔ تو اس کالے بندے نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آقا نے کہا تھا نا کہ آنے سے انکار کرے گا، تیار نہیں ہوگا، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ جناب عامر شیخ کی گھر والی، اس کی بیوی اپنے ساس سسر کے نام پہ 500 روپیہ سے خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ حضرات بیچ بیچ میں دیتے رہیے، جس کو دینے اب تک نہیں دیے ہیں بیچ بیچ میں آ کے دیتے رہیے۔ حضرت علی نے جب ان سے کہا چل تجھے نبی بلا رہے، تو اس کالے بندے نے کہا میں نہیں جاتا، میں اپنے مالک کے لیے پانی لینے آتا ہوں، 3 دن آنے میں لگتا ہے، 3 دن جانے میں لگتا ہے، یوں ہی ٹائم خراب ہوتا ہے، میں کسی کے بلانے پہ نہیں جاتا۔ اس نے انکار کیا۔ آقا نے حضرت علی سے کہا تھا اس کو پکڑ کر لانا۔ حضرت علی آگے بڑھے اور اس کو پکڑ لیا۔
अब जिसको अली पकड़ ले उसे कौन छुड़ा सकता है। हजरत अली ने पकड़ा और उसको उठाकर लाया, आका के सामने रख दिया। अब वो काला बंदा जब आका के सामने आया ना, आका के चेहरे मुबारक को देखा तो देखता रह गया। वो सोच में पड़ गया कि इतना भी खूबसूरत कोई इंसान होता है। आका के चेहरे को देखकर वो सोचने लगा कि इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत कोई इंसान होता है। वो देखता रहा, पलके भी नहीं झपकता, देख ही रहा है। आका ने सहाबा से इशारा किया, जिसको पानी की जरूरत है इसके मशकीजे से पानी लेते रहो। कोई वजू के लिए पानी ले रहा है, कोई गुस्ल के लिए पानी ले रहा है, कोई घोड़ों को पिलाने के लिए पानी ले रहा है, कोई अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पानी ले रहा है। सारे लोग पानी लेते जा रहे हैं, लेकिन उस बंदे के मशकीजे से एक बूंद पानी कम नहीं हो रहा। ये पावर नहीं है तो क्या है? अभी हदीस खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और बात है, सुनाऊंगा। ये पावर नहीं तो क्या है कि इतने लोग पानी ले रहे हैं, लेकिन मशकी जैसा का तैसा है, जितना पानी था उतना ही पानी है, एक बूंद पानी कम नहीं हो रहा। और वो काला बंदा तो न आका के चेहरे को देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, नजर नहीं हटा। अच्छा, मैमुल शेख अपने वालिद के नाम पर 100 रुपया और अपने नाना के नाम पर 200 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस दान को कबूल फरमाए। हजरत, वो काला बंदा आका को देखता जा रहा है। आका ने उससे कहा कि देख, तू आने से इनकार कर रहा था, तेरे मशकीजे से पानी कम नहीं हुआ। तो उस काले बंदे ने कहा कि मैं दो ही चीज़ तो देख रहा हूँ, एक तो आपका चेहरा देख रहा हूँ कि इतना भी खूबसूरत कोई इंसान होता है, और एक अपने मशकीजे को देख रहा हूँ कि इतने लोग पानी ले लिए, लेकिन मेरे मशकीजे से एक बूंद पानी कम नहीं है। मैं दो ही चीज़ तो देख रहा हूँ। आका ने सहाबा से कहा, इन्होंने तुम्हारी ज़रूरत पूरी की पानी की, तुम्हारे पास खाने का कुछ हो तो इसको दो। तो किसी ने खजूर दिया, किसी ने छुहारा दिए, किसी ने सत्तू दिए, और एक बड़ी पोटली बांध के उसके सर पर रख दिया। और आका ने कहा, अब जा तो अपने मालिक को पानी दे दे। लेकिन अब वो काला बंदा क्या बोलता है जानते हैं? वो बोल रहा है कि अब मैं नहीं जाऊंगा। कहते सुभान अल्लाह, पहले आने से इनकार कर रहा था, अब जाने से इनकार कर रहा है। कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। कह रहे जाता क्यों नहीं? आने से इनकार कर रहा था, आया तो अब जाता क्यों नहीं? जा अपने मालिक को पानी दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपना चेहरे मुबारक दिखाकर मुझे दीवाना कर दिया है, तो कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान भी कर दीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अब आका ने कहा ठीक है, जा पानी अपने मालिक को दे दे और उससे छुट्टी लेके मेरी बारगाह में आ जा। वो काला बंदा गया। उधर उसका मालिक रास्ता देखते देखते कि मेरा गुलाम गया है पानी लेने के लिए, इतना लंबा टाइम तो कभी नहीं लगता, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई लूटमार, कोई चोरी हो गई, किसी ने उसको मार दिया, क्या हुआ? चलो चल के जरा आगे देखते हैं। अपने साथ एक और साथी को लिया उसका मालिक और 2 घोड़ों पे जाने लगा। इधर जाते जाते दूर से उस गुलाम पे मालिक की नजर पड़ी, दूर से। अपने साथी से कहता है वो मालिक कि कोई बंदा आ तो रहा है, लेकिन मैंने तो काला भेजा था, ये तो गोरा आ रहा है। यानी आका के एक नजर से वो काला बंदा गोरा हो जाता। आका के दस्ते मुबारक उसके सर पे आका फरमान फेरते हैं, उसके चेहरे पे फेरते, काला बंदा गोरा हो जाता है। तो मालिक को शुबा हुआ, मालिक ने कहा कोई आ तो रहा है, लेकिन मेरा गुलाम तो काला था, ये तो कोई गोरा आ रहा है। जब करीब पहुंचा तो नौकर ने अपने मालिक को सलाम किया। मालिक ने कहा तू कौन? तो नौकर ने कहा मैं आपका गुलाम, ये घोड़ा आपका, ये सवारी आपकी, ये मशकीज़ा आपका, मैं गुलाम आपका, आप मुझे पहचानने से इनकार करते हैं, मुझे नहीं पहचानते। मालिक ने कहा पहचानता तो हूँ, लेकिन ये बता कि तू काला था गोरा कैसे हो गया? तू तो काला था, गोरा कैसे हो गया? उस गुलाम ने कहा मैं उससे मुलाकात करके आ रहा हूँ जो सारी कायनात को चमकाने आए हैं। जब ही तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे आका को अल्लाह ने इतना पावर दिया, मदीने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, पूरी जमीन सूख गई है और जमीन फट गई है, कहीं पर एक हरा घास तक नहीं है, जानवर घास के बिना मर रहे हैं, पानी के लिए इंसान तड़प रहे हैं। ऐसे ही आलम में जुमा का दिन आता है,
मस्जिद नबी खचाखच भरी है। आका खुतबा देने के लिए मिंबर पे खड़े हैं। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए। यहाँ से सहाबी का अकीदा क्लियर हो रहा है ना? सहाबी का अकीदा समझ में आ रहा है ना? कि सहाबी का अकीदा ये है कि आका जो चाहे वही होगा। तभी तो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए, अल्लाह से पानी मांगिए, अल्लाह से बारिश मांगिए। अगर बारिश नहीं हुई, जमीनों पे सब्ज घास नहीं है, जानवर चारे के बगैर मरे जा रहे हैं, अगर पानी नहीं हुआ तो इंसान भी मर जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए। तो आका वहीं पर उस सहाबी ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, वलैसा लना फिरारुना इल्ला इलैहि। या रसूल अल्लाह आपके अलावा हमारा और है कौन? कह दीजिए सुभान अल्लाह। कितना प्यारा जुमला है, कितना प्यारा जुमला है। या रसूल अल्लाह आपके अलावा हम दुख दर्द सुनाए तो किसे सुनाए? आपके सिवा हमारा और है कौन? या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमाइए, अल्लाह से बारिश मांगिए। उस सहाबी का ये जुमला आका को पसंद आ गया। आका ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठा दी। कहते सुभान अल्लाह। आका ने दुआ के लिए हाथ उठाया, इधर आका का हाथ उठना था। रावी का बयान है कि उधर आसमान में काले काले बादल छाने लगे। अभी आका दुआ खत्म करके अपने चेहरे पे हाथ फेरा भी नहीं था कि झमाझम बारिश होने लगती है। कितना पावर है। हम पावरफुल नबी के उम्मती हैं। अभी वाक़या खत्म नहीं हुआ, हदीस खत्म नहीं हुई है। हदीस पूरा कर दूं? हदीस पूरा कर दूं?